ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਵਨ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਕੈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ ਕੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਨੰਦ ਗੁਣੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਖਾਂਡ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਖਾਂਡ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਖਾਂਡ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਨ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦੈਸ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਿਰਸ ਜਾਣਾ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਤਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਖੀਰ ਕਰਕੇ
ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਜਿਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਧੂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਵੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਮਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਮਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੌਜਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕਈ ਅਮੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਖਤ ਤਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਖੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਰੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸਨ, ਭੈਣਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅੱਜ ਵੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਧੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਂਭਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਮਾਧਵਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਸਤਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਛਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਛੱਤ ਕੋਈ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ। ਸਿੰਘ ਰੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਹਰਪਾਲ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਮਾਧਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਹਰਪਾਲ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਸਾਡੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। 106 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 106 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰਬੀ ਕਰ ਵੀਓ ਗੀਤ ਨਾ
कहते जेड़े इस मात लोक ते आए ने नाम जपण वाले बंदगी करन वाले वो परमेश्वर का सिमरन करके बंदगी करके नाम रतन गुणा हर बन जाए लाभ वखर लै चाले वो नाम का वणज करते हैं ते साध संगत जी ते नाम इत्थे ही वणज करते हैं ते नाम ही जपते हैं ते नाम ही जपाउंदे ने लाभ वखर लै चाले मेरे मालिक कहते जेड़ी इहो जिहियां रूहां संसार में आउंदियां ने ना ओढ़ ने भी प्रीत सेवक दी ओढ़ दी ओढ़ ने भी प्रीत सेवक दी बंदगी करना उन्हां दा वचन कमाउंदा है उन्हां दी प्रसन्नता लैंदा फिर एक दिन समा आ जाता जेड़ा आसन लाया उते जदों देखदा है ते उते अपने मुर्शद दे दर्शन कर रहा बोलो सतनाम इस करके आओ साध संगत मेरे मालिक कहते ने हर के सेवक जो हर पाई तेरी की कथा नरागी दे जेड़े हरि दे सेवक हरि नु भागे उन्हां दी कथा कहन कहन सच खंड चलिया कर के कमाइया सच खंड चलिया सवार दरगे चलिया सच्ची दरगे जाए सच्चा पिंड बंदे आओ साथ संगी नाम प्रसाद दियो स्वामी हरपाल दास महाराज ने हुक्म कीता सी हुक्म ही सिर मथे ये तां साडा अपना स्थान है जदों भी सासंग नाल इहो जिहड़े आ समागम ने दशहरे दे दिन जां जदों महापुरखां ने जाना ये तां साध संगत जी साडा फर्ज बनदा है ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਵਾਮੀ ਹਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਬਚਨਾ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
ਸੁਰਤ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਰਹਿ ਆਏ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ स्वामी बाबा माधवानंद जी बारे साध संगत सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। बेशक उन्होंने उम्र 106 साल 2 महीने कुछ दिन दी हो के इस संसार तो गए ने। साढ़े ते लगता है भी दादा जी तो भी बड़ी उम्र दे सी, पर लगभग 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ लास्ट साढ़े कोल पहुंचे सी। उन्हों का शरीर जुब्बी का सीगा, पर उन्होंने जो नामदान लिया सी वो चित्रकूट साढ़े एक साधुआं की बहुत बड़ा स्थान है उतों लिया सी। परमात्मा ने किवें मेल मिलाए सानू नहीं पता। सानू भी साधु चाहिए सी ते उन्हां नूं भजन बंदगी लई अस्थान चाहिदा सी। जदों आए तो असी कोई गल कही कि बाबा जी तुसी साडे कोल रहो ते इत्थे बैठ के नाम जपो। असो चाहते सी, कई बार उन्होंने इस गल का जिक्र किया। बैठे ने भाई इंद्रजीत सिंह जी जिन्होंने कि भारत सरकार क्या करते सी, वो दिलों व्यापरीत सी दोनों रूहां दी। क्योंकि ये रूहां का मेल है। संसार जो है दुनियावी लोग ने, पर जिथे आत्मा की गल आ जाती है वो करोड़ों लखां मीलों दूर तो भी खिंच के परमात्मा मेल करा देता है। नानक सतगुरु तिना मिलाया जिन धुरों पिया संजोग। ये दुनियावी तौर पर लोग पढ़ते हैं, पर ये आत्मा दी गल्लां ने। कित्थों कित्थे परमात्मा किहड़ी आत्मा नाल मेल दिंदा है कोई पता नहीं है। क्योंकि जे अज असीं लावां नूं भी असी एक दुनियावी तौर पर लै लिया कि ब्याह के लिए साडे गुरु पातशाह जी ने सानू हुक्म दिते ने, पर वो अध्यात्मिकवाद दीआं लावां ने। आपां इस विषय वल ना जाइए। उन्हां बजुर्गां ने सानू एक गुरु का दर्जा दिता। कदे कदे रोह विच आके कोई महात्मा आ जांदा तां बड़ी आवाज़ तुसीं ये देखना सी कि ना आवाज़ विच कोई फर्क पिया ना निगाह विच कोई फर्क पिया। जिवें महापुरुषों ने वचन किए ना, जदों प्रीत लगती है गुरु के नाल तां एक तड़फ पैदा होती है, एक भुख पैदा होती है। 1 तरीक की पूर्णमाशी सी। सारिਆਂ ਨੂੰ कहा कि मैनू नीचे बिठाओ, मैं कीर्तन सुनना है। ਜਿਹੜੇ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ सेवादार हाजिर सी उन्होंने पता है इस गल का। जिन्ना चिर कीर्तन होया, आरती हुई, अरदास बेनती हुई, उस तो बाद उन्होंने अखां बंद कर लियां ते मुड़ के उन्होंने 3 दिन अखां नहीं खोलियां, क्योंकि वो संसार के नालों नाता तोड़ गए सी। ना संसार तो नाता तो उन्होंने पहले ही तोड़ दिता सी। चलो जो भी उन्होंने नज़दीक सी उन्होंने नालों भी नाता। 3 दिन उन्होंने अखां बंद कीतियां ते सिर्फ परमात्मा नूं याद किया। साध संगत वड्डा हठ ये सी कि मरदे दम तक अपने वस्त्र किसी तो नहीं धवाए। बहुत बार कहना कि मशीन पई है, सारे बच्चे काम करनगे, बाबा जी तुसी सेवा करवाया करो। कहते नहीं, साधु नूं अपनी सेवा आप करनी चाहिए। असी क्योंकि वो गृहस्थ विचों आए सी, उस इलाके दे वो मुखिया रह चुके सी। उन्हां दिनां दे विचों देखो परमात्मा की किड्डी खेड़ हो गई। अज दुनिया घोड़े खरीदी है, उस टाइम बाबे ने घोड़ा रखिया सी, बंदूक रखी सी, ये इलाके का मुखिया सी। पर जदों परमात्मा ने रहमत की, बख्शिश की, अपने चरणों नाल जोड़ना किया, तो उन्होंने घरों जो माता जी सी उन्होंने अकाल चलाना होया ते उस तो बाद घर का परित्याग कर दिता। इन्हां दा बेटा इत्थे बैठा है। जे इन्होंने कदे आना भी, हुण भी असीं इन्हां नूं जबरदस्ती रखिया सी कि नहीं अंतिम समय तुसीं सेवा करो, क्योंकि पिता की सेवा जिहड़ा कोई करदा उहनूं किते तीर्थां ते जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। माता पिता की सेवा सब तो बड़ा तीर्थ है। हुण भी इन्हूं भजाउण की कोशिश की कि चला जा, जे आना तो 2 दिन रहण तो तीजे दिन तो भजा
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇंगे। हिंदी बोलते सी क्योंकि उन्होंने अंदरों कमाई सी 18 घंटे। क्यों साड़ी आदत है असी रात को जो जागना सी गेड़ा देना अस्थान के उत्ते तो उस अवस्था के विच बैठे होना, जे आराम करना तो दिने लोगों भावे सौ जाना, पर उन्होंने माला उन्होंने हाथ में होंगी। ये साधु कमाइयां करते हैं, फिर साधुओं को नमस्कार होंदियां ने। कोई साढ़े वर्गे पेखाधारी इत्थे बैठे अपने आप को पता नहीं तत्वेते ब्रह्म ज्ञानी की कहाई जा रहे हैं। दुनिया को लुटण ते असीं लक बन्ने हैं, पर कदे उस रब नूं लुटण दी गल असीं सोची भी नहीं। जे किते असीं रब नूं लुटण दी गल कर लईए तां साडा दुनिया नालों नाते टुट जाणगे, साडी प्रीत पै जावे गुरु लोकां दे नाल, रब दे नाल। रब ने सानूं की सिखाया, जिवें महापुरुषों ने हुणे वचन कीते, अजकल के विद्वानां दी असीं की गल्लां करिए, क्योंकि इन्हां कोल तर्क है, पर जो रब की अवस्था है, जो रब दे नाल जुड़ना है, वो तर्क तो ऊपर है। अब बैठा भाई सुरजीत सिंह परसों चौथे आया सी विचोला बन के। ये कोई साधु महात्मा कई कहते जी मत्था टकाउंदे ने, करते ने मत्था टकाउणा कोई सौखी गल नहीं, अपना आप गवाउणा पैंदा। बैठा जे किसी को नहीं यकीन तो पुछ लियो। इनू वचन भी इको कीता सी कि भाई किसी के विचोले नहीं बनीदा, कर्म भोग जिहड़े ने वो भोगने चाहिए ने, क्योंकि जे कर्म भोग इंसान नहीं भोगता तो वो दोबारा गलती करेगा। जे सानू कोई सजा परमात्मा दे रहा है तो उसे साडा कर्म भोग है। सातों कोई गलती हुई है ना, जाने अनजाने जिवें मर्जी हुई है, पर सानू भुगतनी जरूर पवेगी। सो इस गल करके परमात्मा का आसरा तको, परमात्मा के नाल जुड़ना करो, धर्मां जातां गोतां तो उपर उठो, क्योंकि रब ने सानू ये नहीं सिखाया। रब ने सिखाया जे भगत कबीर जी की अज वडियाई है तो भजन बंदगी करके है। उन्होंने कोई जात करके नहीं जानता कि उन्होंने जात जलाहा सी। अज तो ये भी कहते आपां नूं सरकार भी दंड देती है, पर जिहड़े भगत होए उन्होंने चैलेंज करके कहा। भगत रविदास जी महाराज जी ने कहा, हर शब्द के विच उन्होंने चमार शब्द की वरतों की, ताकि जो समय के पंडित समय के लोग सी विद्वान अपने आप को पाउण वाले उन्होंने नालों वखरी परमात्मा वडियाइयां देता है। क्योंकि गुरु पातशाह जी ने सानू हुक्मनामे दे विच भी इहो बख्शिश की है कि गुरपूरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी। गुरु दे नाल जुड़ना हर इंसान दे हिस्से नहीं आया, पर कोशिश करो जुड़ो। साडे नाल जुड़न की कोई लोड़ नहीं, जुड़ना है तो रब दे नाल जुड़ो, परमात्मा दे नाल जुड़ो। जदों प्रीत पैंदी है, पर कहते गुरु तो बिना साडी गति भी नहीं है, सानू मार्ग समझाउण वाला गुरु भी चाहिए। 2-4 दिन होए असीं विश्वास गल चल रही सी कि देखो इतिहास पढ़िए तो दत्तात्रेय जी ने 23 गुरु धारण किए। अज तो एक गुरु धारण करने वालियां नूं लोग किंतु परंतु करते हैं। वो कोई पागल थोड़ा सी कि उन्होंने 23 गुरु धारण किए। इस गल करके आप तो वड्डियां दा सत्कार करो। घरां दे विच बुजुर्ग ने, ये नहीं कि तुसीं नर्स रख दो, तुसीं डॉक्टर रख दो, तुसीं अपने हत्थीं सेवा करो बुजुर्गों की। उन्होंने तुहानूं इस संसार के उत्ते आउण दा सुभाग बख्शिया है, क्योंकि वो जरिया बने ने साडे आउण दा। भावें आपां लखां जप तप कर लईए, जदों तक अपने माता पिता की ते अपने गुरु लोगों की सेवा नहीं करते तो साडा इस संसार तो पार उतारा नहीं हो सकता। घरां दे विच बुजुर्गां दे सत्कार करो, उन्हां नूं समय नाल रोटी पानी प्रसादा छकाओ, उन्हां नूं पुछो, उन्हां कोल कुछ घड़ियां बैठो। कोई ये नहीं कि पैसे नाल बुजुर्गां दा मन जित्या जा सकता, नहीं। बुजुर्ग अकलापन महसूस करते हैं, क्योंकि पुत्र धियां नौवां अपने कामां कारां विच बिजी ने, रुझे ने, पर किसी को ना बच्चे संभालने का टाइम है
ना किसी को बुजुर्ग संभालने का टाइम है। जिसने दो चीज़ां संभाल लिया, तीजा समा संभाल लिया, तो उन्होंने संसार के उत्ते लगता सानू कोई घाटा नहीं रहेगा। उसकी प्रॉपर्टी के मालक वो बन गए जिन्हों ने ये तीन चीज़ों की संभाल कर ली। सो इन्नियां को बेनतियां हुण महापुरुषों को बेनती है कि मां बाबा स्वामी माधवानंद जी महाराज जी के सुपुत्र भान प्रताप इत्थे हाजिर ने। उन्होंने साडे सत्कारयोग बाबा अमरीक सिंह जी महाराज ਸਰੋਪਾਓ की बख्शिश करनगे। भानु प्रताप नूं बेनती है आके अपना ਸਰੋਪਾਓ भाई महापुरुषों तो प्राप्त करे। भानु प्रताप कित्थे है? महापुरुष पहुंचे ने, जिन्हें भी महापुरुष पहुंचे ने सारे का चलिया एक एक कदम साडे सिर मस्तक उत्ते। जी आया महापुरुषों नूं सत्कार है सारे का। सो भानु प्रताप नूं भी बेनती है कि जिवें स्वामी माधवानंद जी निभा के अपने गुरुओं नाल किसी भी स्थान नाल किसी भी धर्म नाल जुड़ना करो। परिवार दे विच उन्हां दे नाम ते कुछ समा रोज भजन बंदगी करो बैठ के सारा परिवार, क्योंकि आपां कह दिंदे आ कि साधु दीआं इक्की कुलां कर जांदियां ने। वो किवें तरनगियां ने? साधु तो कोई विश्वास करूं तां नहीं तरनगियां, जे घर दे विश्वास ही नहीं करते फिर किवें तर जाणगे? ये भी गल्लां ने। सो ये महापुरुषों ने जिवें वचन कीते सियाड़ साहब वाले महा बाबा जी ने। सो ये बिरलियां रूहां हुंदियां ने जदों इक्को ही परिवार विच बख्शियां हुईयां रूहां हुंदियां ने। नहीं तो कोई लाहा लैंदा, कोई दूर का तो लै ही लैंदा, घर दे नहीं लाहा लिया करते। सो इक्को ही बेनती है भानु प्रताप नूं जाके उत्थे जिन्ना भी उन्हां महापुरुषों के नां ते तुसीं नाम जपदे हो नाम जपो। कोई दान पुण्य कोई भुखा आउंदा है उहनूं प्रसादा जरूर छकाओ। ते जिवें भी अगला समा बनिया सी तुहानूं परिवार नूं दसांगे, क्योंकि परिवार की इच्छा सी कि उत्थे भी एक भंडारा किया जाए, पर अजे शरीर इजाजत नहीं सी दे रहा। इस करके जो अगला आने वाला भंडारा होगा वो साड़ी आस है भी 2-4 सालों लिजा के असी महापुरुषों के घर दे विच परिवार दे विच उत्थे भंडारा करके आईए। अगे जिवें महापुरुषों नूं मंजूर होगा समाधां वालियां नूं उवें हो जाएगा। सो हुण भाई सेवादारां नूं बेनती है कि देगां वरताओ। जिन्हां चਿਰ देगां वरतनियां ने सतनाम वाहिगुरू दा जाप करिए। ते जिन्नियां भी संगतां स्वामी माधवानंद जी महाराज जी के प्रेम का सदका इत्थे पहुंचियां ने, सारियां दा सत्कार है, सारियां नाल नूं प्रेम है। क्योंकि सुख दे विच जाइए ना जाइए, दुख दे विच जरूर जाना चाहिए। चाहे घर का कुत्ता भी चले जाए तां भी सानूं दुख हुंदा है। जिवें महापुरुषों ने दस्सिया सानूं अज एक घाट बड़ी महसूस हो रही है कि गुरुआं ते जाण तो बाद सानूं उन्हां दे माता जी की सेवा करन दा समां मिलिया। ते उन्हां दे जाण तो बाद चलो उदों स्वामी माधवानंद जी भी इत्थे सी, पर स्वामी माधवानंद जी दे बैठे बैठे असीं उन्हां नूं एक जिंदरे की तरह समझते सी, क्योंकि उन्होंने हर श्वास समर्पित किया इस स्थान को। किसी ने थोड़ा करके जाना, करवा के जाना। इंद्रजीत सिंह होना ने, गुरबख्श सिंह होना ने, किसी होर ने जो भी माया देनी पहला वो 1000 रुपया इकट्ठा करके गोलक दे विच पाउंदे सी, ते उस तो बाद उन्होंने 500 रुपया इकट्ठा करके ये नहीं कि अपने हाथ नाल जिन्ने भी इस स्थान के सेवादार ने, इस स्थान से सेवा कर रहे हैं, जां कोई रोजाना आने वाला बच्चा है उहदे हथों भी गोलक दे विच पवाए। देखो ये है तार जुक्तियां दे नाल मुक्तियां तारना कि किसी की जेब विच 500 रुपया नहीं होगा, पर उन्होंने इकट्ठा करके दूजे के हाथ तो गोलक विच पवाना ताकि वो 70 गुणा हो के उस इंसान को मिले। ये कहते हैं साधुआं दीआं दरिव दृष्टियां की लोग समझणगे, की लोग समझणगे नहीं समझ सकते, पर साधुआं दे समझण लई भी कमाइयां चाहिए ने, सिमरन चाहिए, करया करो, जुड़िया करो परमात्मा दे नाल। उन्हां सारे आईयां संगतां दा महापुरुषां दा धन्नवाद। जी आयां नूं इन्हां दा महापुरुषां दा चलिया एक कदम जो अते बोलते इस स्थान नूं समर्पित ने। चाहे सतनाम वाहिगुरू दा जाप करिए, उस तो उपरंत गुरु के लंगर तैयार ने। भाई सारी संगत ने प्रेम दे नाल गुरु के लंगर छक के घरां नूं जाना। जो